Hello students. So today I am going to explain you grade 9 poem number 7 The Duck and the Kangaroo, written by Edward Lear. So Edward Lear was an English artist, illustrator, musician, author and poet, now known mostly for his literary works in poetry and prose, and especially his limericks, forms of popularized. So this is a humorous poem and of kind of known as nonsense verses by Edward Lear. So let's read and understand and enjoy this poem, The Duck and the Kangaroo. You can see here the photo also, the duck and the kangaroo. Stanza first. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hope, over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. So, here the duck is telling to his friend, that is kangaroo, that good gracious how you hope, that OMG, so graciously you hope, कितने अच्छे से तुम hope कर सकते हो. Now what is meaning of hope? होपिंग मीन्स जंपिंग, राइट. सो अगर आपने देखा हो तो कैंगरू यूज टू जंप. सो द डक इज टेलिंग दैट सो हाउ ग्रेशियसली यू होप, हाउ लकी यू आर दैट यू कैन होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. कहाँ पे कर सकते हैं? ओवर द फील्ड्स मतलब लैंड पे भी और पानी में भी. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और इतने अच्छे से लाइक नो वन कैन स्टॉप यू, या तुम कभी रुक नहीं सकते, इतने अच्छे से तुम हर जगह पे यू कैन जंप. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड. सो वी नो दैट डक, यू नो डक्स जो होते हैं वो एक छोटे से पॉन्ड में रहते हैं पूरे पूरे टाइम. सो वो जो डक है वो अपने फ्रेंड से कह रही है दैट माई लाइफ इज़ अ बोर, मीन्स माई लाइफ इज़ सो बोरिंग हियर, काफ़ी बोरिंग है मेरा लाइफ ये छोटे से पॉन्ड में. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मुझे कहाँ जाना है? आई लॉन्ग टू गो, माई डिज़ायर, माई विश टू गो इज़ आउट इन द वर्ल्ड. इस दुनिया में बाहर अलग अलग जगहों में जाने की इच्छा रखती हूँ मैं, और पर मुझे इस पॉन्ड के अंदर जो कि काफ़ी बोरिंग है मुझे रहना पड़ता है. आई विश आई कुड होप लाइक यू. सो हेयर वन ऑफ द विश ऑफ डक, शी इज़ टेलिंग दैट आई विश, मैं विश करती हूँ कि काश मैं होप कर पाती तुम्हारे जैसे. सेट द डक टू द कैंगरू. So let's move further to second stanza. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole day, or the whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jelly Bully, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. So again the duck is telling that please give me a ride on your back. प्लीज़ मुझे एक राइड दे दो, मुझे अपने बैक, अपने पीछे बिठा कर एक राइड दो. ठीक है, ऐसा डक कहती है अपने फ्रेंड से, कैंगरू से. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, तो वो कैसे बोलती है? दैट आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, एकदम सीधे, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, विदाउट यू नो, विदाउट एनी मूवमेंट, आई विल सिट देयर एंड आई विल से नथिंग बट क्वैक, जो कि एक हैबिचुअल होता है, राइट. क्वैक क्वैक यूजुअली डक्स के यूज टू से. सो मैं सिर्फ क्वैक करूँगी, बट अदर देन दैट आई वुड नॉट से एनीथिंग. द होल ऑफ द डे, लॉन्ग डे थ्रू, मतलब पूरे पूरे दिन, द होल लॉन्ग डे आई विल से no words but a single thing, and that is quack. And we would go to the Dee and the Jelly Bully, means here it's a name of some places, it's just an imaginary name, imaginary जगह है ये. Dee and Jelly Bully ऐसा कोई जगह नहीं है, but here the duck is telling that we will go Dee and Jelly Bully over the land and over the sea, means लैंड से होते हुए, सी से होते हुए, इस तरह से वी विल एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड आई वांट टू गो. प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड, प्लीज़ टेक मी अ राइड, ओ डू.
ठीक है, said the duck to the kangaroo. See here how the duck is telling to his friend that to take him also. Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection. What is, if you will let me speak so bold? Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. So, अब तीसरे stanza में the kangaroo is telling something to duck, and that is this requires some little reflection. So, what he is telling that everything is okay with you, but कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ चीज़ों में ध्यान डालना ज़रूरी है, ठीक है. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, मतलब अगर हम पूरे की बात करें, नाउ ही इज़ टेलिंग दैट अगर हम पूरे जर्नी की बात करें तो सब ठीक है. आई विल टेक यू ऑन अ राइड, आई विल मेक यू सिट ऑन माई बैक एंड एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड. मे बी यू नो काफ़ी लकी होगा मेरे लिए, काफ़ी मतलब एट द एंड इट विल बी ऑल गुड विथ मी, बट कुछ कुछ बातों में ध्यान देना ज़रूरी है और वो ये है. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड बट वन ऑब्जेक्शन इज़ देयर, एक प्रॉब्लम है. वॉट इज़, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड. सो वॉट द कैंगरू इज़ टेलिंग दैट लेट मी स्पीक सो बोल्ड, मुझे कुछ बोलने का मौका दो. सबसे पहले तो योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड. सो वॉट इज़ कैंगरू इज़ टेलिंग दैट योर फीट, तुम्हारे जो पैर है वो बहुत ही अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, मतलब यू नो अनप्लीजेंट है काफ़ी, बिकॉज इट इज़ क्वाइट वेट एंड कोल्ड, काफ़ी ठंडे हैं और गीले हैं, और मैं तुम्हें पीछे नहीं बिठा सकता, बिकॉज अगर मैं तुम्हें मैंने पीछे बिठा दिया देन एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज. सो हियर रूमेटिज इज़ काइंड ऑफ अ डिसीज़, काइंड ऑफ बोन डिसीज़ बोल सकते हैं, ठीक है. बोन्स में जब दुखता है हमें, बॉडी पेन, बोन्स में दुखता है, हड्डियों में दुखना, दैट इज़ कॉल्ड. सो अगर मैंने तुम्हें मेरे पीछे बिठा दिया तो तुम्हारे पैर इतने ज़्यादा, पूरे पूरे दिन तुम पॉन्ड में रहकर तुम्हारे पैर इतने ज़्यादा गीले हैं और ठंडे हैं कि अगर तुमने मेरे पीछे बैठा तो मुझे रूमेटिज़म ना हो जाए, सेड द कैंगरू. सो एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड बट शायद मैं बीमार हो सकता हूँ, ऐसा उसने कहा. सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क, said the duck. As I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of roasted socks, which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. So again, अब fourth para में again the duck is telling that एज आई सैट ऑन द रॉक, मतलब जब मैं रॉक्स के ऊपर बैठी थी और जब मैं ये सब सोच रही थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, यू नो ये मुझे ध्यान में आया भी था, मतलब ऐसा कुछ होगा, मतलब जो कैंगरू है वो ऐसा कुछ बोलेंगे, यू नो इफ़ डक इज़ टेलिंग दैट मुझे पीछे बिठा के एक राइड पे लेके चलो, वर्ल्ड में घुमाओ मुझे, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मेरे जो फीट है वो अनप्लीजेंट लगे, ठंडे, वेट एंड कोल्ड लगे. तो मैंने इसके बारे में भी सोच लिया था रॉक्स के ऊपर बैठे बैठे. एंड आई बॉट 4 pairs ऑफ रोस्टेड सॉक्स, तो मैंने उसके लिए भी सोल्यूशन लेके आई हूँ मैं, ठीक है. मैंने उसके लिए भी, मेरे लिए वुलन के सॉक्स मैंने ले लिए हैं 4 pairs विच फिट माई वेब फीट नीटली. ना वेब फीट, अगर आपने डक का पैर देखा हो तो कैसे कनेक्टेड होते हैं, वेब जैसे होते हैं, ठीक है. तो जो अच्छे से मेरे वेब फीट को नीटली कवर करता है और उसके ऊपर फिट रहे वैसा सॉक्स मैं लेकर आई हूँ. एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और अपने बॉडी में से ठंडी को दूर रखने के लिए मैंने क्या लेकर आई हूँ, क्लॉक. नाउ क्लॉक इज़ अगेन यू नो काइंड ऑफ क्लोथ जो पूरे बॉडी को कवर करता है. जैसे आपने हेलोविन पार्टीज़ में देखा हो तो ब्लैक कलर का कैसे पहना जाता है, लाइक दैट. एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक. देन व्हाट डक इज़ टेलिंग दैट डेली आई विल स्मोक अ सिगार, ठीक है. एक सिगरेट भी मैं स्मोक करूँगी ताकि मेरे बॉडी में थोड़ा वार्मनेस रहे. ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू, बहुत ही प्यार से वो बोल रही है कैंगरू को, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे प्यारे कैंगरू, राइट. नाउ 5th para. Said the kangaroo, I am ready.
all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hoped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. So in the last stanza, again kangaroo is telling that I am ready. हाँ, अब सब कुछ ठीक हो गया है. Now you have bought the socks and everything is quite good. That duck will cigar the smoke the cigar, and अब सब कुछ ठीक हो चुका है. Now no problem is that I am ready to take you on my back. All the moonlight pale means आधी रात को भी हम चलते जाएंगे, ठीक है. But to balance me well, dear duck, sit steady. पर मुझे properly balance करने के लिए वो डक को कह रहे हैं सिट स्टेडी मीन्स बिना हिले डुले कुछ किए बिना चुपचाप वहाँ पर सीधे बैठ जाना. कहाँ पर? एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मतलब मेरे टेल पर. आप देख सकते हो यहाँ पे इन द फोटो ऑल्सो यू कैन सी हाउ डक इज सिटिंग एट द टेल पार्ट ऑफ कैंगरू. सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड. तो इस तरह से दूर दूर वो जंप करते हुए, तेज़ी से जंप करते हुए, बाय बाउंडिंग, बाय होपिंग, they went through. They hoped the whole world 3 times. कितनी बार उन्होंने जंप करते हुए, बाउंड करते हुए पूरे वर्ल्ड में चक्कर काटा? ऑलमोस्ट 3 times round. And who so happy, oh who. Now the poet is asking that कौन है ज़्यादा खुश? Oh, as the duck and the kangaroo. Obviously both of them are very happy, but who is more happy here? Obviously duck, right? But यहाँ पर इन द लास्ट बोथ आर वेरी हैप्पी दैट दोनों एक दूसरे के साथ पूरे वर्ल्ड का 3 बार चक्कर काटा है, एंड दे बोथ आर वेरी हैप्पी विद दैट. सो दिस वॉज द पोएम. काफ़ी ही थोड़ा सा अलग सा एक पोएम था. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. जस्ट अ पोएम, इसमें कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है. जस्ट कैंगरू एंड डक आर टेलिंग टू ईच अदर एंड दे आर टॉकिंग. सो हो नहीं सकता है, बट इस तरह से पोएट जो थे हमारे वो इस तरह के पोएम्स बनाते हैं, राइट. सो दिस वाज द पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.